Whether you're a beginner or repeater, whether you have absolute free time or maybe you're doing a job or busy with college, this detailed study plan is useful for everyone because I'm going to cover foolproof plan for the next 5 to 6 months so that you can get that 99 percentile and do not regret that maybe I could have done something more, yeah, or maybe I could have given more importance to this or that topic. In this particular study plan, students, I'm going to cover all important topics, all lesser important topics, how much time to give to which exact topic. We are going to cover all three sections, VARC, Quant and DLR. And if you follow this, especially if you're confused and if you're someone who is just starting, who wants to get a study plan so that you exactly follow all those topics in the way I am telling you, trust me, you're going to get a very good percentile. So hi, my name is Deepika Avasthi. I have 13 years of experience in teaching VARC section, and today, as you can see, we are going to discuss detailed study plan for CAT 2025 students. Before we start, students, one thing we need to understand that डूइंग समथिंग फॉर द सेक ऑफ डूइंग, कि मैंने बोल दिया, आज आपको एज अ टीचर बता दिया, आपने फॉलो कर लिया, may or may not yield results, right? Doing something with growth mindset will definitely yield results. Means I gave you आज 5 क्वेश्चन कर लो, आपने 5 क्वेश्चन कर लिए, right? But if you're not analyzing your mistakes, right, if you're not ready to learn where you're going wrong, आपके next 5 questions शायद गलती हो जाए. So do not follow this study plan because it's been told to you. Follow this study plan keeping improvement in mind, that whenever I do these topics, next day when I'm doing it, I'm also analyzing my mistakes. Yes everyone, so let's get started. The very first thing is abhi, right now, how much time do we have? It is on 30th November, last Sunday of November, right? So we have less than 6 months, I would say, right? So 6 months के हिसाब से मुझे एक तो, if I am a beginner, I need to first of all complete the syllabus. If I am someone who is not a beginner, my syllabus part is done, I can directly start with the second phase. So we'll start first of all generally, like weekly targets कैसे होने चाहिए, अगर कोई revision start कर रहा है तो उसको कैसे करने चाहिए. If somebody is starting mock now onwards, what will they do, and somebody who do not want to start the mocks for now, जो 2 या 3 महीने बाद start करेंगे, वो किस तरीके से mock, right? So my next 3 slides are for beginner students. सबसे पहले beginners कैसे करेंगे. After that we'll be talking about someone who is taking it for the second time or someone who is say working, who has less time in hand, वो किस तरीके से preparation करेंगे. ठीक है. All right, so always CAT preparation के 3 phases होते हैं. First is foundation, wherein you complete the syllabus. Say we will keep June and July for completing all the syllabus, right? For phase 2 आप practice करेंगे, right? Self practice पर ज़्यादा ध्यान देंगे, and phase 3 में mocks and revision करेंगे, which is in October, November, last 2 months. Before we really go ahead students, if in case you do not know the important topics of exam, आपके 3 sections आते हैं, right? First is VARC. VARC में RC is your most important topic because majority of the questions you get from reading comprehension. After that there is DILR. आपको at least exam में 2 set अच्छे से करने हैं, 2 set, right, in 40 minutes, मतलब 1 set in 20 minutes. उस तरीके आपको speed like develop करनी है. आप अपनी strength देखो, आपकी DI में है कि LR में है. वेटेज ऑफ क्वेश्चन, जनरली सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चंस रेगुलर आते हैं, वो एक आपका डुएबल क्वेश्चन हो सकता है इसमें. प्लस क्वांट, right? Quant mein again there are like more than 4 to 5 topics, but 4 topics are much more important than anything else, that is arithmetic, algebra, geometry and numbers, you know, like that. तो अगर आप उससे start करोगे तो it will give you more confidence, because when you start with the mocks, whenever after 1 or 2 months, you will get a better hang of this section. At the same time you score more because आपका majority of the questions is from, right, arithmetic, algebra, geometry, and then last में I can say number system. Yeah. All right. So as you can see, ये बहुत ही generic phases हमने divide कर रखे हैं. So again, अभी अपना जब phase 1 start करोगे तो आपका focus क्या होना चाहिए, कि एकदम से ऐसा नहीं कि difficult questions करने हैं, because अगर मुझे CAT level सारे questions मेरे सही होते as a student, तो मैं क्यों कोचिंग लेती, क्यों प्रॉपर 6 मंथ्स पहले से स्टार्ट करती. मैं लास्ट में 1 महीना, लेकिन 1 महीने में लास्ट 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके डायरेक्टली एग्जाम में चली जाती है, एंड देन मेरा सब सही हो जाता है, इजंट इट. बट बिकॉज आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दोज डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन, आई नीड टू एटलीस्ट डेवलप, और आई वुड से मेक माई बेस स्ट्रॉन्ग, मेक माई फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग. तो आपका जब सिलेबस आप कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग इट टू कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग वंस, यू आर डूइंग इट टू डेवलप योर कॉन्सेप्ट. तो कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आया किसी भी टॉपिक का, पर आपने भले ही
सिलेबस कंप्लीट करने के लिए 20-30 क्वेश्चंस कर रखे हैं, दैट मीन्स योर बेस इज नॉट स्ट्रॉन्ग एंड यू कैन स्टिल नॉट रीच दैट काइंड ऑफ एक्यूरेसी विच 99 परसेंटाइल के लिए जो रिक्वायर्ड है वो आप शायद फिर भी ना पहुंच पाओ. सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फेज फॉर स्टूडेंट्स. मेक श्योर आपकी हर जगह पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो. रीडिंग हैबिट स्पेशली फॉर वर्बल सेक्शन इज इंपॉर्टेंट. रीडिंग तभी आपका आरसी इंप्रूव होगा. एंड आई फील रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूरे कैट के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट फॉर VAR सेक्शन ऑब्वियसली, बट फॉर DA LR भी ऑल्सो. द क्वेश्चंस आर सो कॉम्प्लिकेटेड कि अ लॉट ऑफ टाइम स्टूडेंट्स गेट देयर आंसर्स रॉन्ग बिकॉज दे कुड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपर. इन क्वांट ऑल्सो मैथ्स में भी यही होता है, कुछ पूछा केजी में पूछे, हमने ग्राम में आंसर कर दिया है, या उसके बाद में उस चीज़ को फ्रैक्शन में देना था, मैंने किसी और फॉर्म में आंसर दे दिया. इजंट इट? सो वी डोंट रीड द क्वेश्चन केयरफुली. एक लास्ट स्टेप की वजह से सब कुछ गलत हो जाता है. सो प्लीज एंश्योर स्टूडेंट्स आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी हो. ऑफकोर्स इट विल डायरेक्टली हेल्प यू फॉर योर वर्बल सेक्शन, बट आई फील इट इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर ऑल 3 सेक्शंस एज वेल. राइट. सो पहले से आप अपना जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक वो है बेसिक क्वांट में, ये 2 चीज़ों पे ध्यान दें. बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग बिकॉज दैट विल हेल्प यू नॉट जस्ट विथ क्वांट बट DLR एज वेल. एंड देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन जनरल टू अंडरस्टैंड एनी कैट क्वेश्चन क्विकली. मुझे हर क्वेश्चन विद इन 2 मिनट्स में समझ आएगा, तभी मैं आंसर कॉन्फिडेंटली निकाल पाऊंगी. आधे टाइम अगर मुझे क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो मेरा आंसर कैसे सही आ सकता है. और मे बी इट्स करेक्ट बट आई नेवर फील कॉन्फिडेंट कि वेदर माई आंसर इज करेक्ट. ऑन सो रीडिंग इज एक्सट्रीमली important skill to get everything correct, so that you basically you understand the questions quickly, तभी आंसर सही आ सकता है. ठीक है. तो आपका इनिशियली वीकली टारगेट क्या होना चाहिए. सो वी हैव 7 days फॉर एग्जाम्पल, तो आप 7 RCs का एक टारगेट रखो. इफ़ यू वांट टू टेक अ ब्रेक फॉर एग्जाम्पल से संडेज आई विल नॉट स्टडी, आई विल टेक माई ब्रेक लाइक दैट, तो फिर आप लाइक नो एक दिन में 2 RC कर लो, या फिर 2 RC एवरी डे 4 days में ख़त्म करो. 5th डे डू सम वर्बल एबिलिटी क्वेश्चंस लाइक पिकअप 20 वर्बल एबिलिटी क्वेश्चंस कि आई डू 5 पैरा जंबल, 5 पैरा कंप्लीशन, राइट, 5 पैरा जंबल, 5 पैरा कंप्लीशन, 5 ऑड वन आउट एंड राइट 5 समरी क्वेश्चंस, पैरा समरी क्वेश्चन. इस तरह से करेंगे. एंड देन रेस्ट 2 days आई विल गिव इट टू अदर्स और टॉपिक्स. आप इसको इस तो वट एवर आई एम स्केड्यूल अगेन आई एम गिविंग यू, अपनी अवेलेबिलिटी वेदर यू वर्किंग, वेदर यू फ्रेशर, वेदर यू फ्री टाइम, उसको थोड़ा सा आप एडजस्ट कर सकते हो. इनिशियली जस्ट फिक्स 4 क्वांट टॉपिक्स, राइट, या फिर 3 to 4 क्वांट टॉपिक्स. आई विल से स्टार्ट विथ अरिथमेटिक. अरिथमेटिक ढंग से समझने के लिए आपको नंबर सिस्टम भी अच्छे से आना चाहिए. तो अरिथमेटिक एंड नंबर सिस्टम एंड देन अलजेब्रा, ये आप करो. अगर इफ़ पॉसिबल ज्योमेट्री भी करो, अदरवाइज पहले तो आप ये 2 टॉपिक से स्टार्ट करो लाइक दैट, राइट. एंड देन 7 LRDI सेट आपको डेली के सॉल्व करने हैं. ये मैं आपको वीकली बोल रही हूँ, पर 7 day एवरी डे. यू कैन फिक्स 5 days अ वीक या 6 day. अब 7 में आपको डेफिनेटली इनिशियली बहुत टाइम लगेगा, पर अगर आपने इनिशियल स्टार्टिंग में ये कर लिया तो फिर आपको डेफिनेटली आपका टाइम रिड्यूस होगा. अगर आप 1 या 2 सेट एवरी डे कर रहे हो वो भी ठीक है, इट विल टेक अगेन 1 hour और सो इनिशियली. इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग सेक्शन. बट अगर थोड़े ज़्यादा कर लेते हो तो आपकी जो लेटर लास्ट 2 months में जो रिविजन है वो बहुत ईजीली और स्मूथली होगा. ओके. नाउ लेट्स अज्यूम डेली यू हैव टू गिव 4 to 6 hours. मैं इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से भी आपको बता देती हूँ. तो 4 to 6 hours you have to give. A lot of students ask me, for example, how much time we need to devote for CAT preparation, how many mocks we need to take before CAT exam, how early. So of course there are some standard answers also for this question कि भाई 6 hours daily study करना है, start your mocks at least 3 to 4 months before, right. ये सारी चीज़ें. बट अगेन स्टूडेंट्स इट डिपेंड्स ऑन द गोल. इट मेरा काम कैसे हो रहा है. इफ़ आई हैव बीन सो फार इन स्कूल कॉलेज, आई हैव बीन एवरेज बिलो एवरेज स्टूडेंट, आई ऑब्वियसली नीड टू वर्क हार्डर देन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. तो मेरा शायद मैम ने बोला है कि 30 मॉक्स ले लो, पर शायद मुझे पर्सनली पता है कि यार आई एम नॉट एन एवरेज स्टूडेंट, तो मुझे 30 से ज़्यादा मॉक लगेंगे. या मैम इज सेइंग स्टडी 4 to 6 hours, बट आई एम नॉट अ ब्राइट स्टूडेंट और अबव एवरेज स्टूडेंट, तो मुझे शायद 6 hours से ज़्यादा भी पढ़ाई करने की ज़रूरत पड़ेगी. सो अगेन वेन एवर यू गेट इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट इट्स अ वेरी जेनरिक इंस्ट्रक्शन. मुझे अपने पर्सनल शेड्यूल, पर्सनल एबिलिटी के हिसाब से थोड़ा सा चेंज, 10% चेंज इधर उधर करना पड़ सकता है. एज अ स्टूडेंट आपको करना पड़ सकता है. एंड फॉर दैट राइट आप वो चीज़ भी साथ में ऐड करो, राइट. सो एक 10% का वेरिएबल रहता है. सो आई वुड से अगर इफ़ यू कैन वेक अप इन द मॉर्निंग 7 to 8:30 PM, right, so you give time to reading editorials plus RC. इसमें क्या changes possible है, what is the flexibility, I'll tell you, but read at least 2 editorials and solve 2 RCs in the morning, students, right. From where can you read editorials? You can read The Hindu, Aeon, The Guardian. ये सारी जगह से आप editorials read कर सकते हो. आपके difficult जो words आपको नहीं समझ आए, you can just note it down so that you can revise.
इन केस वर्बल इज योर स्ट्रॉन्ग एरिया एंड यू वांट टू स्टार्ट योर मॉर्निंग विद समथिंग चैलेंजिंग, तो आप इसको क्वांट को उधर पे रख दो, फॉर एग्जांपल वर्बल को दोपहर में ले आओ, एक ये चीज़ आप कर सकते हो। और इफ सम यू आर सेइंग आई कैन नॉट वेक अप इन द मॉर्निंग, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं कि आई कैन नॉट वेक अप इन द मॉर्निंग, तो फिर ऑफकोर्स लेट नाइट यू हैव टू, ये इवनिंग का टाइम है ना, आप आफ्टरनून में या फिर आपका फिर लेट्स से ऑफिस या ऐसा कुछ है तो फिर आप उसको नाइट में शिफ्ट करो, इजंट इट, बिकॉज दोज हु कैन नॉट वेक अप इन द मॉर्निंग, मैं बोलूँगी फिर आपको रात में करना पड़ेगा। नो पेन नो गेन, इजंट इट, यू हैव टू डिवोट दिस मच टाइम एवरी डे हाउ एवर यू लाइक प्रेफरेबली। बट एग्जाम में अगर आपका मॉर्निंग स्लॉट आया तो आई एम जस्ट थिंकिंग तब क्या करोगे, तो अभी नहीं तो आपको आफ्टर 2 months यू विल हैव टू प्रैक्टिस योर मॉक्स एट एग्जैक्टली द टाइम जो आपका एग्जाम में स्लॉट है, तो अभी नहीं तो आपको ये प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। तो आई वुड से ट्राई टू फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिफर दिस, एंड स्टिल इफ़ यू कैन नॉट देन आप इसको लाइक नाइट में शिफ्ट कर दो ये सारे जो टाइमिंग्स में। तो ट्राई टू डू 2 RCs एवरी सिंगल डे। क्वांट के बेसिक्स, राइट, क्वांट के बेसिक्स जो आपके मैंने टॉपिक्स बताया उसमें फर्दर सब टॉपिक्स हैं, टेक 2 सब टॉपिक एवरी डे आई वुड से। एंड अगेन इसमें जो भी सीटिंग अरेंजमेंट है, सेट है, जितने भी आपके क्वेश्चन है, एक टॉपिक को एक बार लो और उसको उसी हफ्ते करो। लाइक अगर आप सीटिंग अरेंजमेंट कर रहे हो, इफ यू जस्ट स्टार्टिंग, देन डू इट थ्रू आउट द वीक। आपने आज 2 से 3 सेट लिए फॉर एग्जाम्पल, तो उसको नेक्स्ट 5 days डेली करते हो, 10-15 जब सेट करो तब तो आपको एग्जैक्ट आइडिया लगेगा। व्हेन यू जस्ट स्टार्ट डूइंग समथिंग स्टूडेंट्स, एंड स्पेशली इन कैट सिलेबस, यू डू 4 to 5 पैसेजेस, 4 to 5 सेट, या लेट्स से 10 to 20 क्वांट अरिथमेटिक क्वेश्चंस, तब तो ये आइडिया लगता है कि टॉपिक क्या है, ये आइडिया लगता है मुझे क्या नहीं करना है, क्या करना है, कैसे सही होगा, वो फिर भी आइडिया नहीं लगता। इट टेक्स टाइम फॉर दैट टू वेरी इजीली गेट एवरीथिंग करेक्ट, इजंट दैट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो वो इनिशियल जो आपका टाइम होगा उससे यही आपको मिलेगा। यू मे और मे नॉट सी अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट, बट कंसिस्टेंसी इज द की। इफ यू जस्ट स्टे कंसिस्टेंट यू विल सी मार्क्ड एंड कंपाउंडेड इंप्रूवमेंट। इफ सडनली आपका डबल मार्क्स आया, अभी आपके फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम वो वी आर सेक्शन के 25-30 आ रहे हैं, बट द शेड्यूल आई विल बी गिविंग यू, आपका 40+ एकदम आएगा, जब भी आएगा बीच में फ्लक्चुएट होगा 20-30 बट इफ़ यू आर कंसिस्टेंट आपका 40+ एकदम आएगा और फिर वो मेंटेन रहेगा। यू जस्ट हैव टू गिव दैट 1 or 2 hour लेटर इन द प्रिपरेशन स्टेज, राइट दैट। all right, now we'll talk about phase 2. now from here like beginners का भी हो चुका होगा, और जो अभी रिपीटर्स है जो सेकेंड टाइम कैट दे रहे हैं या फिर you're working, तो देन इन दैट केस मैं आपको लूँगी आप फेज 2 से डायरेक्टली स्टार्ट करो। इसमें क्या मेरा फोकस होना चाहिए, ओनली एक्यूरेसी, नॉट स्पीड। I have never seen a student who takes say like half an hour for one question. Initially of course अगर कोई स्टार्ट करे, कोई इतना स्लो सा, पर मोस्टली इतना नहीं होता है, राइट। आप जनरली डबल टाइम लेते हो, 2 मिनट में क्वेश्चन करना चाहिए तो आप 4 to 5 minutes में, या ट्रिपल टाइम 10 minutes, दैट इज जनरली द मैक्स, राइट, फॉर मोर। या फिर इफ यू टेकिंग मोर देन दैट देन मे बी यू डोंट नो हाउ टू डू दैट क्वेश्चन, तो उसमें टाइम वेस्ट करने का है नहीं। आप कुछ क्लासेस देखो एंड देन यू सॉल्व ऑन योर ओन, राइट। अगर 10 मिनट से ज़्यादा कोई क्वेश्चन हो तो आपको पता ही नहीं है टॉपिक, तो देन डोंट ट्राई एंड वेस्ट योर। तो आपका फोकस होना चाहिए टू इम्प्रूव एक्यूरेसी। ऑफ कोर्स अ कॉन्सेप्ट इज वन थिंग, बट उस कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए 10 डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन। ओनली व्हेन वी प्रैक्टिस देन ओनली वी लर्न टू एस दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन, टू क्रैक दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन। सिर्फ कॉन्सेप्ट फॉर्मूला डजंट मीन कि भाई माई दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज डन, राइट। सो ऑफ कोर्स इफ पॉसिबल आपने मॉक्स भी स्टार्ट करो, फ्रीक्वेंसी यू हैव टू इंक्रीज, और आई वुड से आफ्टर फ्यू वीक्स, लेट्स से आप जून में अगर कोई बच्चा स्टार्ट करना चाहता है तो आई विल से टेक 2 मॉक्स, जुलाई में टेक 3 to 4, अगस्त में अगेन once or twice a week, देन सितंबर में तो 2 डेफिनेटली लेना ही लेना है, 8 to 10 मॉक्स। तो दैट वे आपके डेफिनेटली 25 to 30 मॉक्स बाय द टाइम कैट एग्जाम होगा नवंबर में आपके हो जाएंगे। ऑल्सो वॉट विल हैपन, किससे आपके 20-25 मार्क्स हो गए हैं अक्टूबर तक एंड यू स्टिल डू नॉट फील कि उस लेवल का स्कोर आ रहा है। इंप्रूवमेंट तो बहुत हुआ है, राइट नाउ यू गेटिंग 70 परसेंटाइल 75, एंड बाय द टाइम यू रीच अक्टूबर प्रैक्टिस करके आपके 90-95 परसेंटाइल या इक्वलेंट टू दैट काइंड ऑफ स्कोर आ रहा है, बट आपका टारगेट है 99। तो एटलीस्ट अक्टूबर तक यू विल रियलाइज यू कैन बाय मोर मॉक्स, आपके और आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं, तो लास्ट मिनट में आप कर सकते हो। इफ़ यू स्टार्ट ओनली योर मॉक्स से इन अगस्त और सितंबर, बाय नवंबर जब तक रियलाइज कर गया मेरा टारगेट स्कोर जो मेरा गोल है वो तो नहीं मिल रहा है, इंप्रूवमेंट हुआ है बट वो नहीं मिल रहा है, तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, टाइम है नहीं। तो इट्स बेटर टू स्टार्ट योर मॉक्स अर्ली सो दैट यू नो योर रियलिटी वेरी अर्ली ऑन, स्टार्टिंग से पता है ना, अकॉर्डिंगली यू वर्किंग हार्ड एंड यू टेकिंग एफर्ट्स, राइट। सो सेकेंड फेज में व्हाट यू हैव टू डू इज अगेन 7 RC जो आपका है, 1 RC every day या 2 RC every day. If VRC is your strength, you're already getting a very good accuracy. You're able to attempt 16 to 18 questions
जिसमें आपकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी 95% है, तो आप इसको एग्जैक्टली फॉलो कर सकते हो। जस्ट 1 RC एवरी डे, 15 to 20 VA वर्बल एबिलिटी क्वेश्चंस, बीट पैरा जंबल, ऑड वन आउट, पैरा कंप्लीशन, लाइक दैट। एट 5 to 6 क्वांट के आप टॉपिक्स ले लो हर हफ्ते। आज अरिथमेटिक कर लिया, कल अलजेब्रा कर लिया, परसों अरिथमेटिक का जो भी सब टॉपिक आपने वो कर लिया, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटाइल एक्सेट्रा, राइट। 10 LRDI के सेट पूरे वीक में आपको करने हैं, एंड मिनिमम 1 फुल लेंथ मॉक एवरी वीक स्टार्टिंग अगस्त। एवरीवन हैज़ टू टेक। कोई बोलेगा मैंने स्टार्ट किया अगस्त में, बिगिनर हूँ, तो आई एम वेरी सॉरी टू ब्रेक इट टू यू, अगस्त में स्टार्ट करना स्टूडेंट्स इज सुप्रीमली लेट। कोई बोलेगा पर मेरे फ्रेंड ने तो अगस्त में स्टार्ट करके लास्ट ईयर क्रैक कर दिया, वो IIM अहमदाबाद पहुंच गया, तो यार उसकी बात अलग है। वैसे 1% बच्चे होते हैं, राइट, ऐसे हर कोई नहीं होता। जस्ट बिकॉज आपके फ्रेंड ने कर लिया इसका मतलब नहीं और 100 लोग कर सकते हैं, वो एक ही है जिसने कर लिया। तो ऐसे एग्जाम्पल्स को मत फॉलो करो, राइट। ये ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। अपने आप को हमें उतना ही देखना है जितने हम हैं। और सो मेजरली इट्स नॉट पॉसिबल, नॉट बिकॉज कि बहुत क्वांट ईजी या हार्ड है किसी के लिए। एवरी एग्जाम हैज़ अ पैटर्न। इफ़ यू डू नॉट हैबिचुएट योर माइंड टू दैट पैटर्न, इट इज़ इन अ वे डिफिकल्ट टू स्कोर वेरी वेल इन एनी काइंड ऑफ एग्जाम, नॉट जस्ट कैट एग्जाम। तो इनफ मॉक्स लेना हर बच्चे के लिए ज़रूरी है। आप कभी भी स्टार्ट करो, अगस्त से तो हर बच्चों को कंपल्सरी मॉक लेने ही लेने हैं, ठीक है। ओके, नाउ उसके अलावा आपके नेक्स्ट उसमें अगेन ऑलमोस्ट अगेन 5 to 6 hours ऑफ स्टडी यू विल हैव टू डू। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग मैम, डोंट यू थिंक दिस इज अ लिटिल टू मच एक्सपेक्टिंग 5 to 6 hours ऑफ स्टडी फ्रॉम एवरीवन? आई वुड से इफ यू रियली वांट इट बैडली, इतना मिनिमम है, राइट। आई वुड नॉट से दिस इज अलॉट। अगर आपको सच में आपको सीरियसली 99% स्कोर करना है, फॉर यू आई वुड से IIMs आर द टारगेट, टॉप कॉलेज में जाना ही जाना है, तो आप ये खुद से करोगे इतनी, राइट। इतना आपको नींद नहीं आएगी कि अरे मेरा आज इतना नहीं हो पाया, आई स्टडी ओनली फॉर 2 hours। इफ़ यू आर बीइंग कैजुअल एंड आप 2.5 लाख लोगों से compete कर रहे हो, राइट, और आपको लग रहा है थोड़ा बहुत एवरेज परफॉर्मेंस है, एवरेज अभी पढ़ाई करने से हो जाएगा, तो आई एम सॉरी, 2.5 लाख में बस 5,000 पीपल आर गोइंग टू गेट इनटू दोज टॉप 10 कॉलेजेस। और जो डेली का 1 to 2 hours दे रहा है उसको क्यों मिलेगा? स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो डेली 1 to 2 hours दे रहे हैं, जो एनी विच वेज अभी तक अपनी पढ़ाई में नॉर्मल ही रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि हम बिल्कुल क्लास में टॉप पे आते हैं, तो भी मे बी आपका क्वांट ग्लोबल अच्छा होगा, नहीं। बट अगर वो भी नहीं है तो कैसे होगा? आप लॉजिकली खुद ही सोचो, इट सो मेनी पीपल आर और स्टूडेंट्स आर वर्किंग हार्डर देन दे डिजर्व इट। सो मॉर्निंग स्लॉट, right, again start at 7 a.m. if you have problems with waking up early, I am not able to focus, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या I don't know, I am just feeling negative, ये सबके साथ हो रहा है या आपके साथ नहीं हो रहा है, पहली बात तो आप ये समझो। और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आप कोई भी आपको मोटिवेट करेगा बाहर से, यू विल बी मोटिवेटेड, इंस्पायर्ड फॉर 1 or 2 days, आफ्टर दैट अगेन यू विल गो बैक टू योर ओल्ड हैबिट। सो बेटर इज आप इसमें सेल्फ कंट्रोल खुद से डेवलप करो, कुछ पुश करने का, मॉर्निंग में कैसे उठना है कैसे नहीं, या फिर इफ़ यू हैव एनी पर्सन यू आइडियलाइज, राइट, कोई एग्जाम्पल्स हैं आपके जो लोग आप जिसके आप फैन हो, फॉर एग्जाम्पल समवन हु हैज़ वर्कड रियली हार्ड इन लाइफ, उनके कुछ इंटरव्यूज देखो, कुछ टू स्टे मोटिवेटेड। जनरली दैट्स व्हाट वर्क्स फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। ऑल राइट, सो मॉर्निंग में अगेन स्टार्ट विथ नाउ थोड़ा वर्बल, क्योंकि इनिशियली हम लोग बहुत ज़्यादा RC पे फोकस करते हैं, सिंस दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। वर्बल एबिलिटी को वी गिव लेस वेटेज। तो अगर आपको लगता है कि थोड़ा चेंज कर देते हैं तो VA करो, RC ऑल्टरनेट देखो। बट अगर RC इंप्रूव नहीं हुआ है तो RC अभी भी रेगुलर रखो स्टूडेंट्स, बिकॉज RC इज ओनली द टॉपिक विच इज गोइंग टू गिव यू द फाइनल गुड स्कोर इन वर्बल सेक्शन, राइट। डिफिकल्टी लेवल प्लीज इंक्रीज करो। आपको डेफिनेटली इकोनॉमिक्स पैसेज आने वाले हैं, एक साइंस एनिमल बेस्ड पैसेज प्रेफरेबली आएगा ही आएगा, तो प्लीज़ ये करो। इन्फरेंस, राइट, समरी, वी, इस तरह के क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करो, बिकॉज इसके वेटेज समरी, वाई, बिकॉज पैरा समरी आता तो है, एट द सेम टाइम इफ यू लर्न समरी फास्टर यू विल कॉम्प्रिहेंड द पैसेजेस ऑल्सो फास्टर, नॉट जस्ट समरी क्वेश्चन। RC के लिए भी आपको ये समरी स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इन तरीके की स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द। if you go to office, if you go to college, you can shift this afternoon time to night time, say 10 to 12 in the night, 10 p.m. or 8 to 10 p.m. depending on when do you prefer to study, right? So अब इसमें आप थोड़ा सा जो बाकी टॉपिक्स है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, लाइक आई टोल्ड यू, अरिथमेटिक पे इनिशियली ज़्यादा ध्यान दे, तो अब आप इसमें नंबर सिस्टम हो सकता है, you can do those topics, right? So algebra mein again quadratic, linear equation, polynomials, some basic examples I have written. Of course there is more to algebra, but then at least start with the questions which you often get to see. Past year question papers will be a better source for you to give you a clear cut idea on which topics are asked more, which topic has a higher weightage in each and every section, be it verbal, quant or DLR.
इवनिंग में अगेन डी आई एल आर को आप ऑल्टरनेटली कर सकते हो। आज आपने डी आई के 2 सेट किए तो टुमारो यू विल डू एल आर के 2 सेट, राइट, देन अगेन डे आफ्टर टुमारो डी आई रिपीट। इस तरह से ऑल्टरनेट कर सकते हो। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, एवरी स्टूडेंट has a different style of studying, as in if I study like this I understand better. Whenever you study your goal is not hard work कि इतना मेहनत जैसा फील हो जाए लगेगा आज तो बहुत किया, नहीं, ये गोल नहीं होना चाहिए। when you're studying the goal should be कि I am studying so much that now in like 4 to 5 hours I feel there's an improvement। अगर इस टॉपिक का मैं टॉपिक टेस्ट लूँ कल तो मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर आएगा एंड आई विल फील कॉन्फिडेंट। अगर आपको वो नहीं आ रहा है अंदर से तो वट एवर स्टडीज यू डूइंग दैट मे और मे नॉट बी इनफ, राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट। सेकेंडली तो आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर ऑल दीज एग्जाम्स, तो मेरे टीचर्स मुझे रेकमेंड करते थे, जैसे मैंने अभी आपको लगा 2 आवर 2 आवर 2 आवर, तो जनरली इनिशियली व्हेन वी आर डूइंग बेसिक्स एंड इजी क्वेश्चन वो चीज़ वर्क की, बट टुवर्ड्स दी एंड जब लास्ट के 2 मंथ्स बचे तब मुझे वो चीज़ वर्क नहीं कर रही थी। बिकॉज से व्हेन आई वाज टेकिंग माई मॉक्स तो मेरे फॉर एग्जाम्पल इन्फरेंस के क्वेश्चन गलत होते थे। वैसे वर्बल वॉज ईजियर फॉर मी एट दैट टाइम, क्वांट में ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो अगर मैं बोलूँ कि यार मुझे अलजेब्रा में ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी तो मैं अलजेब्रा को किसी दूसरे टॉपिक के साथ मैं इंडिविजुअली मिक्स नहीं कर सकती थी। इट वॉज नॉट ईजियर फॉर मी। सो इफ आई एम डूइंग अलजेब्रा टुडे आई विल डू अलजेब्रा ओनली विथ ब्रेक्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल आई स्टार्टेड इन द मॉर्निंग, या मैंने 7 to 9 किया ऑफिस जाने के पहले या कॉलेज जाने के पहले, राइट, लाइक दैट। तो मैंने 7 to 9 थोड़ा अलजेब्रा किया, समझ आया नहीं पता, फिर शाम को जब वापस आया थोड़ा सा ब्रेक लेके स्टार्ट किया, फिर 2 घंटे जो चीज़ सीखी वापस थोड़ा रीड किया, क्या गलत किया सुबह क्या नहीं, फिर एक आधे घंटे एक घंटे का डिनर ब्रेक लिया, फिर किया। तो ऐसे 6 आवर्स अगर मैं एक ही सब्जेक्ट को दे देती तो आई यूज टू फील बेटर कि हाँ अब मुझे समझ आ रहा है क्या है, मे बी आई गिव 1 or 2 days जस्ट लाइक दिस, आई विल बी वेरी गुड एट दिस, इजंट इट। तो मुझे पक्के समझ आएगा, देन फिर मैं मॉक दूंगी तो मेरा मॉक में भी इंप्रूवमेंट है। दिस वॉज माई वे ऑफ स्टडी। अगेन एवरी वंस वे इज डिफरेंट, पर मेरे को था कि मैं अगर ऐसे स्टडी कर रही हूँ तो मुझे वो टॉपिक जल्दी इंप्रूव होगा, रादर देन मैं 2 घंटा अलजेब्रा करूँ 2 घंटा अरिथमेटिक करूँ, वो नहीं। बट देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर एक्सट्रीमली गुड एट मैथ्स फॉर एग्जाम्पल, दे जस्ट नीड टू सॉल्व फॉर रिविजन, उनको कुछ सीखना नहीं है नया, उनका अरिथमेटिक अलजेब्रा ज्योमेट्री सब अच्छा ही है, तो वो ये कर सकते हैं कि 1.5 आवर फॉर एग्जाम्पल दे दिया ज्योमेट्री को, फिर 1.5 आवर अलजेब्रा को, देन उनके लिए ठीक है। बट इफ सम टॉपिक इज एक्सट्रीमली वीक, आपको बिल्कुल डिफिकल्ट लगता है, तो मैं तो रेकमेंड करूँगी आप उस टॉपिक को ही पूरा दिन करो, स्पेशली टुवर्ड्स दी एंड। जब बेसिक्स करते हैं तब तो मिक्स कर सकते हैं, डिफिकल्ट लेवल पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है फॉर एवरेज स्टूडेंट, राइट। ओके, सो नाउ इन अक्टूबर नवंबर व्हेन जस्ट 3 मंथ्स आर रिमेनिंग, जब सिर्फ 3 मंथ्स होते हैं तब आपका पीक परफॉर्मेंस होना चाहिए। आपका टारगेट क्या है, राइट, आपका टारगेट है 99 परसेंटाइल। तो ऑल्दो आपने लास्ट 2 मंथ्स में इंप्रूवमेंट देखा है, आपका 80 से 95 परसेंटाइल आया है, उसमें खुश नहीं हो जाना है, इजंट इट। या आपका वर्बल में 20-25 आ रहा था, अब आपका 35 to 40, उसको 40 टच हो रहा है, यू कांट गेट हैप्पी, आपको 45 प्लस का टारगेट करना है। जब तक वो नहीं हो रहा तब तक यू कांट स्टॉप, यू हैव टू कीप वर्किंग हार्ड। अरे बहुत मेहनत होगी, अब लास्ट में थिंग्स गेट डिफिकल्ट, थिंग्स विल फील डिफिकल्ट बिकॉज यू हैव बीन ट्राइंग, एंड में इंप्रूवमेंट भी स्लो होता है, बिकॉज जब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट का स्कोप होता है तो बहुत धीरे धीरे होगा, बट यू हैव टू कीप द पेशेंस, इट लाइक दैट। तो आपको पीक परफॉर्मेंस के लिए आपको अगेन देखना है कि वो वर्किंग ऑन योर स्ट्रेंथ्स, राइट, जितना हो सके एनालाइज करो क्या क्या कहाँ कमी रह जाए, छोटी से छोटी चीज़ भी आप ऑब्जर्व करो, एंड उसको फिक्स करने के लिए आप उस टॉपिक को जो भी आपको लग रहा है कि यार मेरे को हिस्ट्री पैसेजेस बहुत गलत हो रहे हैं हर बार, अगर फिलोसफी हिस्ट्री आता है तो एक साथ 10 पैसेज उठाओ और सिर्फ वही ही करो नेक्स्ट 2 to 3 डेज के लिए। जब तक आपको एक हैंग आइडिया नहीं मिल जाती, इफ़ यू डू नॉट गेट द हैंग ऑफ इट, डू नॉट टेक अनदर मॉक, वेदर इट विल बी स्लाइटली लेट बट दैट्स ओके, बिकॉज जब आप उसके बाद दूसरा मॉक लोगे और फिर मे बी 2 मॉक वन आफ्टर दी अदर लोगे, आपको उस तरह के टॉपिक्स में कुछ गलत नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली आई हैव टू सी ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट इन मॉक्स। वो क्या मॉक 1 ऐसा तो कोई रूल है नहीं कि इफ आई टेक मॉक 1 देन मॉक 2 में अपने आप कुछ मैजिक हो जाएगा, मॉक 2 में स्लाइटली ज़्यादा स्कोर आएगा, फिर मॉक 3 में अपने आप नहीं, उसके बीच में बहुत सारा काम करना होता है, तो धीरे धीरे आपको ग्रेजुअल ग्राफ ग्राफ में इम्प्रूवमेंट। तो मेक श्योर it's not compulsory for you to take mocks every Sunday if you do not feel prepared, just like you are preparing for the main CAT exam, आप मॉक्स को भी कैट एग्जाम जैसा ही लो, कि अब बिना तैयारी के नहीं लेना है, बिकॉज फिर वो कम मार्क्स आएंगे, कॉन्फिडेंस लो होगा, सेल्फ डाउट होगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, द एंटायर नेगेटिव लूप विल स्टार्ट। यू बेटर देन स्किप 1 संडे, या संडे की जगह ट्यूसडे वेंसडे ले लो, और फिर देख लो जो संडे को लेने वाले हो कमिंग संडे को वो वैसे ले लो, बट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दोज मॉक्स। मॉक्स कैसे एनालाइज करके जो मिस्टेक्स लग रहे हैं उस पर थोड़ा और क्वेश्चन सॉल्व करो, देन टेक द नेक्स्ट, राइट। सो डू दैट, कंप्लीट सिलेबस का रिविजन करो अगर आपका टारगेट 99 परसेंटाइल है स्टूडेंट। यू कांट बी लाइक दिस इज इंपॉर्टेंट दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू गेट इनटू टॉप 5 टॉप 10 कॉलेजेस। हाँ, अगर किसी का टारगेट वो नहीं है कि बस मुझे एक
टॉप 40-50 कॉलेजेस में जाना है, देन जो हाई वेटेज क्वेश्चन है आप उन पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो, वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ्स. बट अगेन देयर इज अ सेइंग दैट इफ यू शूट फॉर द मून यू कैन लैंड अप इन द स्टार्स. तो मैंने अगर मैं इतना नॉन इंपॉर्टेंट देखूंगी तो हो सकता है प्रॉब्लम हो. ऐसे तो पढ़ाई सब करनी है बट ज़्यादा टाइम लाइक इन अ वीक इफ़ यू डूइंग VRC ऑफकोर्स आप 7 डेज में से 4 डे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को ही दोगे. आपका 70% टाइम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को ही जाएगा. या क्वांट में आपका अगेन 70% टाइम अरिथमेटिक अलजेब्रा ज्योमेट्री में ही जाएगा compared to other topics. So that is fine, but we have to still do everything, right? So in the last you have to take at least 5 mocks per week, right? Minimum 5 mocks, and 2 days you can keep for analysis to take a short break. It past your questions if you have not done, I would say start now, but before October तो आप please finish कर लो at least last 5 years के mocks, last 5 years के question paper. If you're not improving in a certain section up, if you're still weak in DILR, no need to waste another mock, right? Then rather take 2 sectional mocks, improve, realize what your mistakes are, work on your weak or mistakes, and then take the next mock so that you do not repeat the same mistake. हर एक मॉक की वैल्यू होनी चाहिए. एक तो जो आपने मॉक खरीदे हैं वो उसके पैसे लगते हैं, वो फ्री नहीं है. एट द सेम टाइम वो मॉक बहुत मेहनत से किसी ने बनाए भी हैं, ये भी समझो. तो आपको उसमें से मैक्सिमम अगर उसको यूज़ करना है, मैक्सिमम ऑप्टिमाइज करना है, तो यू हैव टू प्रिपेयर एंड देन टेक ईच एंड एवरी. कांट जस्ट टेक मॉक फॉर फिनिशिंग ऑल द मॉक्स. खरीद लिया तो चलो एक एक करके क्लिक कर देते हैं ना, क्लिक 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 फिनिश. दिस वे यू विल नॉट सी एनी इम्प्रूवमेंट. एंड ऑफ कोर्स रिविजन विल स्टार्ट. एट जो भी क्वांट के फॉर्मूलाज आपके हो गए लास्ट मिनट पर आपको याद करनी है, तो फॉर्मूला आप कहीं पे like no you can paste around last 2 months and then you remember if you're still forgetting any kind of formula, geometry के algebra के etc, right? 5 at least 5 LR 5 DI set इतने मिनिमम करने हैं. और जितना रिविजन हो सके आप रिविजन ही स्टार्ट करना. you have to work on your strengths, you don't have to work on your weaknesses anymore. कुछ एक आधा टॉपिक लग रहा है तो इट्स फाइन, बिकॉज एग्जाम में एनी विच वेज you don't need to attempt 100% question to get a 100 percentile. अगेन अब आपको थोड़ा सा इफ़ पॉसिबल इफ़ यू आर वर्किंग एंड इफ़ इट इज़ पॉसिबल दैट यू कैन आस्क फॉर पार्ट टाइम जस्ट फॉर लास्ट 1 month, क्योंकि अभी आपने इतना हार्ड वर्क किया, लास्ट में कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए. अगर पॉसिबल है 1 month का कुछ लेके कि मैं पार्ट टाइम कर लूँ, आप अपने बॉस से पूछिए और यू कैन डिवोट मोर टाइम, इट विल बी रियली ग्रेट. राइट, लास्ट में उल्टा स्टूडेंट्स गेट अ लिटिल लाइक जो मेहनत करते हैं वो थोड़े से रिलैक्स रहते हैं कि ठीक है ऑलमोस्ट सब हो चुका है, माई स्कोर इज ऑल्सो आई एम गेटिंग वॉट आई वॉन्टेड, तो अब लास्ट में ज़रूरत नहीं है. पर लास्ट की ही वजह से कभी कभी you see a drop in your final exam score. So again start with the same your morning, afternoon, evening, your morning, evening, night. However, right now maximum you will do your mock test. Right, try to still solve 1 or 2 RCs separately apart from mock test पॉसिबल. राइट स्टूडेंट्स, एग्जाम कंडीशंस में ही लो. अभी तक आपको पता चल जाएगा आपका मॉर्निंग स्लॉट है, आफ्टरनून स्लॉट है, इवनिंग स्लॉट है. इफ़ योर स्लॉट इससे इवनिंग स्लॉट तो आप 4 PM ही डेली मॉक स्टार्ट करो. नो नीड टू डू इट अर्लियर और लेटर, बिकॉज उसी टाइम पर आप बैठोगे आपका ब्रेन वैसे फोकस होगा, वैसे हैबिचुएट होगा, तो अगेन इट विल रेप्लीकेट द सेम थिंग इन द मेन एग्जाम. उसी टाइम पे आप लो, उस तरह का आप शांति रखो, उस तरह का ब्रेन, ये नहीं कि बीच में आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, फ़ोन चेक कर रहे हो, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए. राइट, व्हेन यू अगेन डू ए क्वांट रिविजन, अगेन सी क्या आपके वीक एरियाज़ हैं. अगर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो प्लीज़ वर्क. इफ़ इट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट आई विल जस्ट से कि जो हाई वेटेज एरियाज़ हैं उस पर ही आप ध्यान दीजिए. राइट, एंड अगेन सेक्शनल मॉक एनालिसिस, LRDI, वीक क्वांट में, वर्बल में, विच एवर टॉपिक you feel you still is a challenge for you, take more sectional mocks rather than wasting the entire mock just for that one particular section. Yes, okay. Now for working professionals, if you're working, you may be a beginner or you may be a repeater, of course. So in that case, again, right, same thing for you, but again afternoon will not work, so you will pick up the night slot in that case. But because you will have lesser time than other students, you need to start your mock early. You have to take your drills and tests. This is the one main difference between students who are like working or not working. एक ये चीज़ है, right? You have to solve more set on daily basis. Like for other students I told you 4 to 5, maybe you'll have to take 10 LRDI today, or 10 just LR, tomorrow 10 DI, and then 10 quant questions rather than 4 or 5 questions, like that. At least solve 1 RC, because the point is to be consistent. Of course 2 RC is preferable, but if you 2 RC is something difficult for you, you can't be consistent with that ki theek hai, now if I have to study, I have to study for like 2 to 3 hours, otherwise I will not. So it's better to reduce that, keep it to 1 RC only, but at least be consistent with your reading comprehension for that.
You can give less, I would say, weightage to VA verbal ability questions. I'm not saying do not study, but do it maybe just 2 months before the exam. Do no need to focus initially on verbal ability questions. That is, yes, start with your mocks on weekends, because so take you Saturday and Sunday both. Other students can take just the Sunday because they have a lot of time to study, but you have just your weekend, so one on Saturday, one on Sunday, so that you can finish your mocks or start your mocks much before the exam, and you will again have an idea. Your revision also again need to start at around the same time, that is October, right? But then try to keep only 2 topics per week, right? Like that, or 3 LRD, as in, for example, arrangement. So this week I'll only do arrangement, for example, that. Or this week I'll only learn history passages. So keep 1 or 2 genres, or just summary questions, for example, like that. Yes, students. Now, what are the resources? In my group, right, in my Telegram group, the link of which you will see in the description below, there are 2 Telegram group links given. One is of Unacademy's, one is my personal group, where I share daily reading articles, word list, quizzes, PDFs, a lot of things. So for editorials, you can read The Hindu, Aeon, The Guardian, and if you do not want to struggle with finding the resource, where to read, what to read, just join the group. We share 2 articles every day, just read that. That is it, nothing else, right? So previous year, if you have done from Unacademy, there's so many questions in the practice section and test section. Go there, and then you can take topic test in the practice section, and then full length sectional mocks in the test section, right? So make, if you come across difficult words in VARC, make a notebook so that you keep revising and going back. Then when you read a passage, you're not misinterpreting anything just because a word. Although 60% understanding and reading comprehension is more than enough for you to get everything correct. Coming to quants, again you can follow Unacademy, Arun Sharma, many good books. But if you have come so far and solved like the questions I told you, a lot of questions are available, I would say, on our app as well, which is more than enough. But in case you finish that, you can buy more books. You can again, like, watch Unacademy's video, right? Because we are going to do some mock analysis as well. We have done some marathons, we'll be doing more marathons. So videos of each and every topic is available on this particular channel. आप उसको search में जाके देख सकते हैं. And previous year CAT question papers also are covered. राइट, एंड अगेन फॉर DLR आप प्रैक्टिस करोगे, ऐप से ही प्रैक्टिस करो. कहाँ से करोगे? सोर्स यही है, राइट? मेक यही देखो आप. इफ़ दैट इज़ नॉट इनफ फॉर यू, आपको लग रहा है मुझे सिर्फ लाइक माई DLR इज़ वेरी गुड एंड आई डू नॉट वांट टू डू इजी मीडियम, जस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहिए, आई विल बी गुड टू गो, देन ऑफ कोर्स यू कैन परचेज सम एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल. उसकी भी जरूरत नहीं है. आई फील अ लॉट ऑफ फ्री मटेरियल इज अवेलेबल ऑन गूगल. यू जस्ट हैव टू राइट लाइक व्हाट डू यू नीड, कैट एडवांस लेवल DI क्वेश्चन, ऐसा आप लिखोगे तो जितने सोर्सेज होंगे सब आ जाएंगे. So I don't think you still have to like waste money or spend money purchasing any books. That's not recommended, because this is a practice kind of exam rather than a syllabus completion exam. वो मसल मेमोरी आपको उस हर टॉपिक पे बेटर करनी पड़ेगी, rather than कि बस एक बार कंप्लीट कर दिया अरिथमेटिक एक हफ्ता कर लिया, अलजेब्रा एक हफ्ता, RC एक हफ्ता, VA एक हफ्ता. ऐसे सिलेबस कंप्लीट करने को तो लाइक 1 महीने में भी हो सकता है. इट्स नॉट अबाउट दैट. यू हैव टू बी वेरी गुड एट ऑल दीज टॉपिक्स विच टेक्स प्रैक्टिस rather than randomly picking one topic every week. yes students, मॉक टेस्ट थोड़ा सा आपको ध्यान से देना है. मॉक टेस्ट की उतनी इंपॉर्टेंस रखो जितना कि मेन एग्जाम की हो. जितना सीरियसली वो एग्जाम दोगे उतना ही सीरियसली आपको मॉक देना है. आफ्टर मॉक इफ यू आर नॉट एनालाइजिंग, यू आर वेस्टिंग योर मॉक, राइट? वेरी क्लियरली वेस्टिंग योर मॉक, वेस्टिंग द टाइम यू हैव टेकन. जो आपने मॉक लिया वो 2 घंटे का, आपने वो भी टाइम वेस्ट किया है. तो अगर आपको मॉक के बाद सेम डे एनालिसिस का टाइम है तो उस दिन आप मॉक लो मत. आफ्टर 2 hour you need to have at least 1 hour separate, 1 to 2 hours separately to analyze as well. तभी आप मॉक. तो मॉक एक हाफ अ डे, पूरा आधा दिन लेता है, एक ऐसी चीज़ है. तभी आपकी एक्यूरेसी, स्पीड, मिस्टेक्स आपको प्रॉपर पता चलेगी. यू विल वर्क ऑन दैट, यू विल टेक अनदर मॉक आफ्टर स्टडिंग अ बिट एंड देन यू विल सी द राइट दैट. इमीडिएटली नहीं लेना है ऑफकोर्स. आप हर मॉक के बाद थोड़ा ब्रेक ले लो, बट सेम डे एनालिसिस कर लो, 2 to 3 hours का एंड एवरीथिंग. एक एरर लॉग बना के रखो, राइट? आपका कि कैसे आ रहा है, एक तो वीक एरियाज का, एट द सेम टाइम कैसे परसेंटाइल है. एवरी मॉक इज डिफरेंट, एवरी डे इज डिफरेंट, एवरी डे योर मूड एंड योर फोकस इज ऑल्सो डिफरेंट. so maybe on in the first mock your score is approximately 80 है आपका. 80 plus is a decent score, right? now 20 second mock आपने लिया, आपका 50 हो गया. अब लोग ये तो बहुत ही बुरा गया, like that. थर्ड मॉक लिया आपने, अगेन 90 plus score. अब लोग वाओ. so it will keep on fluctuating for everyone. Every time you will not get exactly same score, yeah, exactly in the 90s only.
बट ये मतलब क्या है कि अभी आप 99 परसेंटाइल पे नहीं हो, मे बी वन मॉक वेंट वेल, बट यू स्टिल मे गेट जस्ट 90-95 परसेंटाइल इन द. So see the average of every 3 mocks, then work, okay, what were the common errors you made in these 3 mocks, work on those areas, then take 4, 5, 6, और फिर एक इसका एवरेज स्कोर देखो, एवरेज कॉमन मिस्टेक्स देखो, फिर इस पे वर्क करो, देन 7, 8, 9 एंड लाइक दैट. राइट स्टूडेंट्स? ऑल राइट. तो अब क्या है मेनली, पहले तो लास्ट में अक्टूबर नवंबर जैसे लास्ट मंथ स्टार्ट होता है, कुछ भी नया नहीं सीखना, ओनली एंड ओनली वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ्स. आपकी मेन इंपॉर्टेंस जो है वो एक्यूरेसी को देनी है, फिर स्पीड को देनी है. राइट, एक्यूरेसी इज मोर इंपॉर्टेंट. आई ऑलवेज से 1 या 2 या 3 भी कम क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे चलेगा, बट अगर आपने ज़्यादा क्वेश्चन करके उसमें आधे गलत कर दिए तो दैट्स बैड. राइट, सो से यू गेट 40 मिनट्स फॉर एवरी सेक्शन. अगर मैं वर्बल में मेरा बहुत वीक है, मैंने 4 मिनट्स टू हर एक क्वेश्चन, मैंने सिर्फ 10 क्वेश्चन किए तो भी मेरा 90 परसेंटाइल बनेगा. आई मे नॉट गेट द टॉप 10 IIMs, एटलीस्ट आई माइट गेट इन टॉप 50, 60 और समथिंग. पूरा साल वेस्ट नहीं होगा, इजंट इट? एट द सेम टाइम इफ आई अटेम्प्ट, मेरे तैयारी भी ठीक से नहीं हुई है, मेरा वर्बल वीक भी है, आई अटेम्प्टेड 20 क्वेश्चन होपिंग कि शायद मैक्सिमम करेक्ट हो जाए, और उसमें से 10 गलत हो गए, तो मेरा 90 परसेंटाइल भी नहीं बनेगा, इजंट इट? एंड देन अब 90 के नीचे कुछ भी आपका स्कोर है, उससे आपको कुछ ऐसा कोई खास कॉलेज मिलने नहीं वाला. इट्स बेटर टू देन फोकस ऑन अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स इन दैट केस, या मे बी टेक कैट नेक्स्ट ईयर अगर आपको आइम्स में ही जाना है. तो मेक श्योर थोड़े लाइक यू नो अटेम्प्ट स्लाइटली कम होंगे चलेगा, बट एक्यूरेसी इज मच मोर इम्पॉर्टेंट. या राइट, सो दैट. अब हमेशा देखो कि आप अपने आपको एक और चीज़, परसेंटाइल पे जज नहीं करो, बिकॉज जितने भी मॉक्स है, कैट इज टेकन बाय 2.5 लाख पीपल, बट कोई ऐसा मॉक नहीं है पूरी इंडस्ट्री में जो 2.5 लाख स्टूडेंट्स लेते हैं. सो आपको परसेंटाइल से कभी आइडिया नहीं मिलने वाला, आपको स्कोर से ही आइडिया मिलेगा. लाइक वर्बल में योर स्कोर हैज़ टू बी 45 प्लस, राइट? 45 या 50 के रेंज, तो अब आपका स्केल्ड स्कोर 50, 52 होगा, एंड यू विल गेट अ 99 पॉइंट सम परसेंटाइल. तो आपको हमेशा स्कोर में ही अपने आप को जज करना है या चेक करना है. ऑफ कोर्स टेकिंग ब्रेक्स, प्लान्ड ब्रेक्स इज मोर इंपॉर्टेंट. राइट, देयर इज नथिंग रॉन्ग. आई विल नॉट से कि भाई फ़ोन फेंक दो, पढ़ाई करो, ये इससे कुछ होने नहीं वाला. दिस इज नॉट इवन नेचुरल. Taking breaks is fine, using phone is fine, using Instagram shorts is also fine, but doing it uncontrollably without self control is not fine. आपने 2 आवर्स पढ़ाई की है, आप बोलोगे हाफ एन आवर इज माई ब्रेक, आई वॉच द टीवी, आई गो आउट लाइक टू मीट माई फ्रेंड्स, आई मे बी यूज द फोन, दैट इज ऑल ओके. बट जब आपने डिसाइड किया कि मेरा 15 मिनट का ब्रेक हो, तो 15 ही मिनट का ब्रेक है, फिर उसके बाद आपको कंट्रोल होना चाहिए कि बंद करो, फोन साइड में रखो, अब नाउ गो बैक टू. उस ब्रेक में आप जो भी करना चाहो दैट यू कैन डिसाइड. राइट, आपको घूमना है बाहर, राइट, फोन पे बात करनी है, इट्स ऑल फाइन, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. राइट, ऑफ कोर्स कंसिस्टेंसी इज द की इन ऑल दीज थिंग्स. राइट, थोड़ा ब्रेक लेते रहोगे, थोड़ा थोड़ा लाइक नो डेली करोगे तो बर्नआउट नहीं होगा. 2 days you're not studying, third day you're getting tense कि oh I have not studied, now you're studying for like 10 to 12 hours, of course burnout होगा. and then 4th day you're not in the position to study, आप पढ़ ही नहीं सकते. दिमाग की भी एक कैपेसिटी है भाई ना अपना 100% देने की. तो डोंट डू दीज थिंग्स. इन कॉलेज एग्जाम से चल जाता है कि आपने लास्ट एक हफ्ते में पढ़ाई की तो आपका अच्छे मार्क्स आ गए, वो सिलेबस बेस्ड एग्जाम होता है. इसमें सिलेबस तो है, बट दिस इज अ प्रैक्टिस बेस्ड एग्जाम. वो सिर्फ सिलेबस एक बार कंप्लीट करके रट लेना इंपॉर्टेंट नहीं है. विच एवर क्वेश्चन वी आर हेल्पिंग यू, वी आर टीचिंग यू, वो एग्जैक्ट रिपीट नहीं होंगे, उसके जैसे होंगे पैटर्न. तो पैटर्न रिकॉग्निशन भी सीखने में बहुत टाइम लगता है. तो मेक श्योर कि आप ब्रेक्स लो पर कंसिस्टेंट रहो. डेली 3 to 4 आवर्स एंड में दोगे तो भी शायद चल जाएगा, बट अगर एक दिन पढ़ रहे हो एक दिन नहीं पढ़ रहे हो तो दैट इज नॉट फाइन. So that students, it's just few things. Again, work on your strongest section. कौन सा वर्बल है, क्वांट है, DLR है, वो डिसाइड करो, उस पर मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करो, उसमें ही स्पीड, उसमें ही एक्यूरेसी अपनी मैक्सिमम पहले तो कोशिश करो. एंड में वीकेंड्स जो आपके होते हैं उसमें अगर आप बाकी दिन अच्छे से पढ़ रहे हो तो टेक अ ब्रेक, दैट्स व्हाट आई विल से. पर हाँ, अगर आप रिविजन, तो अगर आप पढ़ सकते हो तो सिर्फ रिविजन करो, कुछ नया मत करो, सो दैट आपको इतना भी मेंटल एग्जॉशन नहीं आ रही कि बहुत स्टडी हो रही है और फिर वीकडे में आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हो. डू दैट. इट कोई न्यू टॉपिक्स तो ऑफकोर्स लास्ट में नहीं करना है, बार बार बोल रही हूँ. अपने खुद के मॉक पैटर्न्स देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हम इतने सारे ग्रुप्स में होते हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, रेडिट एंड वेरियस प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, जहाँ पे कभी कभी दूसरों के मिस्टेक्स भी अपने लगने लगते. पीपल विल से अरे मेरे को फिलोसफी पैसेजेस नहीं आते, ये बहुत कॉमन है. मेरे को टोन्स नहीं आते हैं. टोन का मैंने बहुत कॉमन सुना है कि मुझे हर साल कम से कम आई वुड से 100 स्टूडेंट्स तो बोलते हैं कि मैम मुझे टोन क्वेश्चन, पर कैट में आज तक किसने टोन पूछा है? तुम्हें टोन जानना क्यों है? ठीक, करवा देंगे क्लासेस, तो उससे क्या हो जाएगा? इजंट इट? कौन पूछ रहा है डायरेक्टली व्हाट इज द टोन ऑफ दिस पैसेज और टोन ऑफ द ऑथर इन दिस?
कौन से लास्ट ईयर, उसके पहले, उसके पहले, उसके पहले, कभी कब था ये सवाल, इजंट इट? तो ऐसे दूसरों के प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम मत बनाओ फालतू की, राइट? आपका क्या स्ट्रेंथ है, हर स्टूडेंट का ट्रस्ट में अलग दिमाग चलता है, ऑब्जर्व दिस। समथिंग विच इज डिफिकल्ट फॉर अदर्स मे नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू इफ यू रियली focus the way you are doing things, isn't it? Or something difficult for you may be easy for others, ये भी हो सकता है। तो you realize what is like, what is coming easy to you, what is not coming that easy to you, and accordingly work। दूसरों के डिस्कशन सुन के कि किसी को इन्फ्रेंस ईजी लगता है, किसी को इन्फ्रेंस बहुत हार्ड लगता है, सबका अगेन अलग है। तो ये भी समझो कि जो कॉमन टॉपिक्स डिफिकल्ट होते हैं दैट वी टेल यू कि यार ये जनरली डिफिकल्ट माना जाता है, पर ऐसा हर टॉपिक में नहीं है, सबकी अलग अलग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं। तो आप अपना मॉक स्पेसिफिकली इंडिविजुअली एनालाइज करो, उसके बेसिस पे देखो। ये सब डिस्कशन के चक्कर में डू नॉट गेट कंफ्यूज अननेसेसरीली। Yes, students. Okay, so Aryan Ray are 99 percentiler last year has gone to IIM Calcutta। उनका एक सेशन हुआ था, इनकी जो लिंक है जहाँ पे ही इज शेयरिंग ऑल द टिप्स एट हाउ ही स्टडीड, आप कैसे 25 के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, उसकी लिंक गिवन है आपके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप क्लिक करके इनका सेशन देख सकते हैं स्टूडेंट्स। अनअकैडमी ऐप पे डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप। दिस इज आवर बैच स्टूडेंट्स, प्राइम रिपीटर्स बैच। यू कैन ज्वाइन इट एट 15,499। इसके बाद प्राइस ऑफकोर्स बढ़ रहा है, सो यू कैन यूज माई डिस्काउंट कोड DA लाइव। अगर आप डिस्काउंट कोड यूज़ करेंगे तो प्लीज़ मुझे बता भी देना आपने डिस्काउंट कोड यूज़ किया, तो आई विल ऐड यू टू माई ग्रुप, ठीक है? सो दैट जहाँ पे मैं पर्सनल डाउट सॉल्विंग और काफ़ी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा देती हूँ टू स्टूडेंट्स। दीज आर स्टूडेंट्स लिस्ट ऑफ आर टॉपर्स फॉर कैट 2024 हु हैव कन्वर्टेड बी स्कूल्स, टॉप बी स्कूल्स आप देख सकते हैं। एट आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, दिस इज टेलीग्राम ग्रुप का, यहाँ पे भी स्कैन कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, you can directly click there and join it। Yes students, so thank you so much। I hope this session must have helped you। if there's anything regarding the study plan या आपका थोड़ा schedule slightly different है from others, feel free to ask your queries in the comments and I'll be replying you soon। See you soon students in the other session। Bye bye।